स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। In the age of information, in the age of social media, where everyone is trying to get your attention because they will make money out of it, we at Study IQ started one particular series named Western Philosophy, or Why You Should Be a Philosopher. You won't believe, but you and me or everyone else is a philosopher when we will ask some questions, some hard questions, like why this disparity? Why Doli Chaiwala is making more money than a philosopher of philosophy or than a philosopher of economy? That one particular PhD holder is still struggling to get into the job, is still struggling to get into 1 lakh per month, but he is getting more money, that individual who is having no knowledge at all. Why? So whenever you will ask such question, you becomes a philosopher. So this particular series will going to answer every question of yours. This particular series will answer hard questions from you, from society, from your beliefs. Because in the age of science, in the age of social media, disparity is increasing. There is a disparity between the knowledge and known knowledge. But the individual who is having no knowledge at all, who is not contributing anything but making more money, why? And ultimately, money is not the ultimate aim of human life. That we will learn in this series. So this series will open up new dimension for you guys. So I welcome all of you in this series, and in this series we will ask hard questions from everyone. And not only we will ask, we will discuss all the philosophers who asked the questions. Because when they started asking questions, all other branches, like philosophy is mother of all science, you know it very well. Why philosophy is mother of all science? Because when people started questioning each and everything, one particular phenomena, like one weather phenomena. Earlier, whenever there was a thunderstorm, people started believing that it is because the God is angry and he is trying to punish us. That is why there is a thunderstorm. That is why there is a storm. That is why there is a lightning. Yes or no? But when an individual came, he questioned that no, it is not like this. God is not angry just because you did not offer something to God. God is not that much shallow. So he will not going to punish you just because of some minor error. And he started analyzing that particular phenomena. And in this way, physics emerged. Are you getting? So philosophy is mother of all science. Why? Because each superstition, each dogma, each myth which was believed as true by humanity were questioned by some individual. He became philosopher and he gave rise to one particular branch of science, that is, you can say philosophy, you can say chemistry, you can say biology. You won't believe, but Aristotle is the father of biology as well. Are you getting? So most of the philosophers were scientists as well. We will discuss that Descartes, Spinoza, Leibniz, they all were mathematicians. Why? Because they questioned something. When they questioned authority, aristocracy, the new field emerged, political science. And in this manner, philosophy became mother of all science, and those individuals became philosophers. So whenever you question something which is inappropriate in the society, whenever you question something because you want a deep down answer, whenever you analyze something at that much depth, you will become philosopher. So in this series, we will ask
In fact, we will learn art of questioning as well. This is how Socrates teaches us. Okay, so welcome to this series. What we will going to discuss in this series, we will discuss, so what is philosophy? ठीक है, what is philosophy? Philosophy is a word which came from two words, philo plus sophia. Philo means knowledge, sophia means knowledge, philo means lover. So lover of knowledge या love for knowledge is philosophy, and lover of knowledge is nothing but a philosopher. So if you love knowledge, you are a philosopher. That's it. And how to get knowledge? This is the process of learning philosophy. It is as simple as that. So whenever you will question something, you will become philosopher. ठीक है? So why philosophy emerged? Philosophy आई क्यों? We will discuss that as well. ठीक है? What problems philosophers were trying to solve? कौन कौन सी प्रॉब्लम है जो ये सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं? जैसा कि मैंने बताया कि थंडरस्टॉर्म पहले माना जा रहा था कि यार देवता जो है वो नाराज हैं इस वजह से। अरे नहीं, कारण कुछ और है। हाउ आइडियाज इवॉल्व्ड अक्रॉस द हिस्ट्री एंड हाउ दिस आइडियाज कंट्रोल टुडेज वर्ल्ड and which gave rise to various branches such as politics, such as education, etc. So because whether you realize it or not, you are already living in someone else's philosophy. Have you getting? तो चाहे आप क्वेश्चन पूछो या नहीं पूछो, आप किसी की फिलॉसफी में तो अभी भी जी ही रहे हो। इस प्रकार की बातें आपको सुनने को मिलेगी ना, तो आपको लगेगा इस पूरी सीरीज में हम यही सब देखने वाले हैं। आपको लगेगा यार क्या देख लिया हमने। ठीक है, पूरे दिमाग के जो तार हैं वो खुलने वाले हैं आपके, और उसका कारण यही है कि बिकॉज वेदर यू रियलाइज इट और नॉट, यू आर ऑलरेडी लिविंग इनसाइड समवन एल्स फिलॉसफी, एंड दिस इज ट्रू, लिटरली वी विल प्रूव इट। ठीक है, तो इसीलिए हम इस सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, आगे बढ़ने के पहले आप सब लोगों के लिए जरूरी सूचना कि नॉलेज के साथ जो बच्चे फिलॉसफी ऑप्शनल लेना चाहते हैं, ठीक है, नॉलेज तो सभी के लिए ओपन है, लेकिन फिलॉसफी ऑप्शनल वाले बच्चों के लिए एक बहुत ज़रूरी सूचना है कि 15 मई को अभी जो करंट बैच है उसके एडमिशन क्लोज हो जाएंगे, और अभी डिस्काउंट भी चल रहा है ना, सेल जो चल रही है, जहां पे आपको 50% ऑफर, 50% ऑफ के साथ डबल वैलिडिटी आपको मिल जाती है। तो आपकी प्रिपरेशन लगभग खत्म होगी, और जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक आपको लेक्चर्स वगैरह सारा एक्सेसिबिलिटी रहेगी, है ना, टेस्ट सीरीज एक्सेसिबल होगी। सो यू गाइस कैन यूज SU लाइव कोड टू अवेल द मैक्सिमम डिस्काउंट। तो बैच भी क्लोज होने वाला है 15 मई को, 2-3 दिन बचे हैं, और ये सेल भी क्लोज होने वाली है। सो प्लीज हरी अप। ठीक है, फिलॉसफी ऑप्शनल, एथिक्स या यूपीएससी में किसी भी चीज के कोई भी समस्या हो, आप मुझसे यहां पर कनेक्ट कर सकते हैं। आई विल हेल्प यू आउट लिटरली। ठीक है, जितनी भी मैं हेल्प कर सकता हूं इंक्लूडिंग मेंटरशिप, आई विल गिव इट टू यू, डोंट वरी। ठीक है, सो व्हाट इज फिलॉसफी? मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, लव ऑफ विजडम, एंड लवर ऑफ विजडम इज फिलॉसफर। ठीक है, अब आप पूछोगे कि सर क्या साइंस हमें नॉलेज नहीं देती है? साइंस देती है, बट साइंस विल आंसर हाउ डज द यूनिवर्स वर्क। साइंस ने सिर्फ ये बता दिया कि हमारा एग्जिस्टेंस कैसे आया, बिग बैंग, आपने नाम सुना होगा कि बिग बैंग के माध्यम से साइंस ने सिर्फ इतना बताया कि यार ऐसा हुआ था। क्यों हुआ था उसका कोई आंसर नहीं दिया साइंस ने, किसने किया था उसका कोई आंसर नहीं दिया। समझ गए? व्हाट का आंसर साइंस देती है कि व्हाट, बट व्हाई का कोई आंसर नहीं है, हाउ का कोई आंसर नहीं है। अभी तक जो हुआ उसका आंसर दे दिया। बेसिकली साइंस विल आंसर मैकेनिकल क्वेश्चन, ठीक है, मैकेनिकल थिंग्स, बट व्हाट इज द पर्पस, व्हाट इज द एम ऑफ एनीथिंग विल नॉट गोइंग टू आंसर्ड बाय साइंस। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूं, अभी कुछ दिनों पहले की एक बात है, जहां पर आपने सुना होगा एंथ्रोपिक नाम की एक कंपनी है ना, जिसका बहुत बड़ी कंपनी है, जिसका एक प्रोडक्ट आप यूज करते होंगे, क्लोड AI। उन्होंने एक फिलोसफर को हायर किया है। अब आप कहोगे कि सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लार्ज लैंग्वेज मॉडल के जमाने में एक फिलोसफर का क्या काम है एक कंपनी में? काम है, एक नई फील्ड इमर्ज होती जा रही है, ठीक है,
जहां पे एथिक्स का भी यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। और एथिक्स क्या है यार, फिलॉसफी से ही तो एथिक्स आया है, वन ऑफ द ब्रांच ऑफ फिलॉसफी। तो उसका काम ही होगा एथिकल गाइडेंस प्रोवाइड करना लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को, ठीक है। क्योंकि अल्टीमेटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितना भी आगे चला जाए, ह्यूमन इंटेलिजेंस की तो जरूरत होगी ना, उसको ह्यूमन टच की तो जरूरत होगी। समझ रहे हो? यदि किसी ने प्रोग्रामिंग गलत कर दी तो एथिकल अनएथिकल कहां से आएगा? वो तो मशीन है ना, उसकी तो बुद्धि नहीं है। आप उसको इंटेलिजेंट कितना भी बोल दो, लेकिन क्या उसकी बुद्धि है अपनी? नहीं है। उस चीज को गाइड करने के लिए एक व्यक्ति फिलोसफर की जरूरत पड़ गई उनको। तो फिलॉसफी कभी भी ऑब्सोलीट नहीं होगी। ऐसा लगता है हमें कि यार फिलॉसफी साइकोलॉजी तो ऑब्सोलीट होगी, क्यों यार, कैसे हो जाएगी? क्या आप ह्यूमन बिहेवियर को पूरी तरीके से समझ गए हैं? क्या आप सच को पूरी तरीके से समझ गए हैं? यदि समझ गए हैं तो फिर बताइए ना कि क्यों एक व्यक्ति जो बिलियनियर है, एक बहुत बड़ी एमएनसी चलाता है, लेकिन वो सब कुछ छोड़ करके और सन्यासी बन जाता है, क्या कारण है इसका? यदि आप बता सके, क्योंकि यदि आपको समझ में आ चुकी हैं चीजें, तो आप इनका आंसर कर पाएंगे। क्यों एक व्यक्ति जिसके पास सब कुछ है ना, सब कुछ का मतलब आपके पास सारे मटेरियल रिसोर्सेज हैं, पर्याप्त मात्रा में, आपकी 7 पुश्तें उनको खा सकती हैं, फिर भी आप बेचैन हो अंदर से। उस बेचैनी का कारण क्या है? Which means there is something which is still calling you that this is not the reality, this is not the achievement, this is not the peace, this is not the thing that you wanted, this is not the existence what you deserve. And in that particular thing, philosophy will come. Philosophy will answer. Science will not going to answer. Economy will not going to answer. Physics will not going to answer. To understand that, psychology is needed. And to reach that particular purpose, the highest aim of your life, summum bonum, philosophy is needed. So that is why we will discuss philosophy in this particular series in this manner, right? So how philosophy was born? Myth was replaced by logic, blind belief replaced by rational inquiry, and when you started rational inquiry, other subjects were born. This was the reality. Authority was questioned. ठीक है? Democracy, all other things were born out. ठीक है? Like lightning, God was angry. Earthquake, divine punishment. Getting or not? And king ruled because. तो इन सब चीजों पे जब क्वेश्चन किया गया तो बहुत सारी ब्रांचेस निकल के आई, चाहे वो फिजिक्स हो गया हो, चाहे वो लॉ हो गया हो, चाहे वो मैथमेटिक्स हो गया। एंड दैट इज व्हाई फिलॉसफी इज कंसीडर्ड एज मदर ऑफ ऑल साइंस। शुरुआत के दिनों में सबसे पहले ये क्वेश्चन करने वाले कौन थे? एंशिएंट ग्रीक थे। उन्होंने अच्छे से चीजों को क्वेश्चन करना शुरू किया कि यार सबसे ऊपर सत्ता किसकी है? सत्ता मतलब रियलिटी है क्या, है ना? इसको फिलॉसफी की भाषा में सब्सटेंस कहते हैं, है ना? आप इसको कंफ्यूज नहीं होइएगा। जब मैं सब्सटेंस कहता हूं तो मैं रियलिटी कंसीडर करता हूं, ठीक है? जैसे यूजुअली जो थीस्टिक रिलीजन है वहां पर सबसे ऊपर सत्ता गॉड को कंसीडर करते हैं, मतलब गॉड को सब्सटेंस कंसीडर करते हैं। तो एंशिएंट ग्रीक जितने थिंकर्स थे उनसे सवाल वो पूछने लगे कि यार सबसे ऊपर सत्ता, सबसे ऊपर की रियलिटी कौन है, एब्सोल्यूट रियलिटी कौन है? तो उनमें से सबसे पहले आए थेल्स। और थेल्स का कहना यह था, थेल्स की पूरी फिलॉसफी में उन्होंने ये कहा है कि वाटर इज द सब्सटेंस। दुनिया की हर चीज जो है वो पानी से निकल करके आई है। एक और थिंकर हुए हैं, उन्होंने फायर को सब्सटेंस माना है, ठीक है? फिर हेराक्लीटस आए। हेराक्लीटस का कहना था कि यार रियलिटी जो भी हो, बट रियलिटी इज चेंजिंग, कंटिन्यूअसली चेंजिंग। रियलिटी वो है जो हर समय बदल रही है, उसको आप रियलिटी मानो। अब चाहे वो वाटर हो, चाहे वो फायर हो, चाहे वो एयर हो, जो भी हो, लेकिन जो हर समय बदलता है वो रियलिटी है। इनफैक्ट आप देखेंगे यूपीएससी में हेराक्लीटस का ये कोट, और काफी फेमस भी है, आप लोगों ने भी सुना होगा, दैट यू कैन नॉट स्टेप ट्वाइस इन द सेम रिवर। ठीक है? आप एक ही नदी में दोबारा नहीं कूद सकते हो, क्योंकि वो लगातार
बदल रही है। ठीक है, तो यहां पे रियलिटी को लेकर के बात हो गई कि एवरीथिंग चेंजेस। रियलिटी वो है जो लगातार बदल रही है। आप जब जाएंगे तो जो बौद्ध धर्म की फिलॉसफी या बौद्ध धर्म का दर्शन है, बुद्धिस्ट फिलॉसफी, वहां पे भी यही बात कही गई है। ठीक है, वहां पे भी जो क्षणिकवाद का कॉन्सेप्ट है कि रियलिटी इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग, एवरीथिंग इज मोमेंटरी, वो भी लगभग हेराक्लिटस जैसी ही बात है। वहीं पर्मेनिडीज आए तो पर्मेनिडीज ने कहा कि यार चेंज जो है ना, जो आपको दिखता है वो इल्यूजन है, रियलिटी तो वो है जो कभी चेंज ना हो, उसको हम रियलिटी कहेंगे। तो देखो, हर एक फिलोसफर ना आएगा, उसके आसपास जो चीजें होंगी उन पे सवाल उठाएगा और रियलिटी को, है ना, वास्तविक सत्ता को डिफाइन करने की कोशिश करेगा, इस दुनिया को समझ करके इस दुनिया को डिफाइन करने की कोशिश करेगा, आपको सीधे शब्दों में समझाएगा। जिस प्रकार से थेल्स ने कहा कि यार रियलिटी तो वाटर है, दुनिया की हर चीज वाटर से निकल के आई है। हेराक्लिटस ने कहा कि यार नहीं यार, ये है ना, हर रियलिटी वो है जो लगातार बदल रही है। तो आप बदलती हुई चीजों को जब देखो तो तब समझ जाओ कि ये रियलिटी है, ये वास्तविक सत्ता है। समझ गए बात? तो इस प्रकार से ये कुछ अर्ली, मतलब प्री सोक्रेटिस एरा के थिंकर्स भी कहते हैं, है ना। एंशिएंट ग्रीक में अ ग्रुप ऑफ फिलोसफर वाज आल्सो देयर जिन्हें सोफिस्ट कहा जाता है। ठीक है, उन्होंने भी अलग अलग ढंग से रियलिटी को समझने की कोशिश करी, बट इट वॉज द सोक्रेटिस हु रेवोल्यूशनाइज्ड ईच एंड एवरीथिंग। सोक्रेटिस ने जिस प्रकार से क्वेश्चन करना शुरू किया, ठीक है, सोक्रेटिस वॉज द पर्सन हु टॉट अस आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग। उन्होंने हर एक चीज पे सवाल उठाए। उन्होंने नेचर की स्टडी करने की बजाय सोसाइटी की स्टडी करी। उन्होंने पॉलिटिक्स पे सवाल उठाए, उन्होंने रिलीजन पे सवाल उठाए, उन्होंने सोशल कस्टम्स, ट्रेडिशन, कल्चर पे सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि जस्टिस है क्या वास्तव में, जस्टिस का कॉन्सेप्ट उन्होंने बताया। सोक्रेटिस इतने प्रभावशाली हो गए कि जो यूथ था उनको फॉलो करने लगा। यूथ उनका दीवाना हो गया कि वाह यार क्या आदमी है, क्योंकि उन्होंने हर चीज पे क्वेश्चन किए। और जब आप क्वेश्चन करते हो इसका मतलब आपने चैलेंज किया। आपको जान करके हैरानी होगी कि जिस समय पे सोक्रेटिस थे, एथेंस में सिटी स्टेट हुआ। एथेंस वाज अ सिटी स्टेट एंड इन दैट सिटी स्टेट देयर वाज अ सिटी रिपब्लिक। डेमोक्रेसी थी वहां पर, ऐसा बोलते हैं। और एक डेमोक्रेसी सोक्रेटिस के क्वेश्चन से इतना परेशान हो गई कि सोक्रेटिस के सामने दो ऑप्शन रखे कि या तो आप अपने विचारों को बदल लो या फिर हम आपको मृत्युदंड दे देंगे, आपको जहर पीना पड़ेगा। उस जहर को कहते हैं हेवलोक। ठीक है, सोक्रेटिस ने कहा यार कि यदि मैं अपने आइडियाज, अपने विचारों को कॉम्प्रोमाइज कर लूं, सत्य के लिए जीना ही तो जीना है। इट वॉज लाइक भगत सिंह कि सत्य के लिए जीना ही तो जीना है। सोक्रेटिस ने कहा कि आई विल नॉट गोइंग टू चेंज माई ओपिनियन। एंड व्हाट इज द प्रॉब्लम दैट यू गाइज आर फेसिंग? ऑथोरिटी सेड दैट यू आर करप्टिंग द माइंड्स ऑफ यूथ। और यदि आप बहुत ज्यादा इनको करप्ट कर दोगे तो ये ओबीडियंट नहीं बचेंगे। फिलॉसफी आपको ओबीडियंट नहीं होने देती है। सोक्रेटिस ने यही सिखाया कि आप आज्ञाकारी मत बनिए, आप सवाल पूछिए। उस समय पे ऑथोरिटीज को चाहिए था कि लोग आज्ञाकारी बने। सोक्रेटिस ने कहा नहीं बनना है आज्ञाकारी, आपको सवाल पूछने हैं। आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, ये सब हम कहां से सीखते हैं? सोक्रेटिस से। उन्होंने क्वेश्चन पूछा, यूथ को इंस्पायर किया, मोटिवेट किया। ऑथोरिटीज को लगा कि he is corrupting and that is why he was given हेवलोक, जहर उनको दे दिया गया। आपको यकीन नहीं होगा, सोक्रेटिस ने हंसते हंसते वो जहर पी लिया। उन्होंने कहा कि अपने विचारों के साथ मैं समझौता नहीं करूंगा। ठीक है, एंड उन्होंने कभी कोई किताब भी नहीं लिखी। सोक्रेटिस कोई बहुत ज्यादा विद्वान व्यक्ति भी नहीं थे। ठीक है, यदि देखें तो पेशे से सोक्रेटिस वॉज वन ऑफ द मेसन, है ना, कारीगर नहीं होते हैं, इस प्रकार का उनका काम था। सोल्जर भी रहे हैं, ऐसा कहते हैं, दिखने में काफी अगली थे, लेकिन उनके जो विचार थे वो आप समझ ही सकते हैं कि उनके विचार क्या थे। ऐसा कहते हैं कि अभी तक की हिस्ट्री में सोक्रेटिस से बुद्धिमान कोई व्यक्ति नहीं हुआ है।
और उसका कारण क्या है? क्योंकि सोक्रेटिस ये कंसीडर करते थे कि आई नो नथिंग। वो आपको हम्बल भी बनाते हैं, आपको कितना भी नॉलेज आ जाए, यू नो नथिंग। उनका कहना ही ये था कि द बेस्ट थिंग दैट आई नो नथिंग, एंड दैट इज व्हाई ही वाज वन ऑफ द मोस्ट नॉलेजेबल इंडिविजुअल एंड ही गेव राइज टू समथिंग। ठीक है, सो दैट वाज सोक्रेटिस। सोक्रेटिस ने तो वो भी कहा था कि एन अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। तो फिलॉसफी आपको क्या सिखाती है? फिलॉसफी आपको सिखाती है कि ओबीडियंस नहीं रहना है, सेल्फ रिफ्लेक्शन, रिएक्शन नहीं देना है, एनालिसिस करना है, कंजम्पशन नहीं करना है। आज की दुनिया में जहां पे कंटेंट कंजम्पशन की बात है, यू हैव टू गो फॉर इंटेलेक्चुअल करेज। सो जस्ट बिकॉज एवरीवन बिलीव समथिंग डज नॉट मेक इट ट्रू, यू हैव टू क्वेश्चन इट। ठीक है, आज के इस दौर में जहां पर प्रोपोगेंडा बहुत ज्यादा चलता है, ठीक है, पॉपुलैरिटी बिकम्स द मोरालिटी, जैसा कि हमने क्वेश्चन किया, एंड द एल्गोरिदम बिकम्स द रियलिटी। ऐसे समय में फिलॉसफी विल गोइंग टू गाइड यू। व्हाई? बिकॉज वी ऑल आर द स्टूडेंट्स ऑफ सोक्रेटिस, वी विल गोइंग टू क्वेश्चन ईच एंड एवरीथिंग। हम किसी की भी सफलता उसके इकोनॉमिक पैरामीटर से यदि मापने लगेंगे तो फिर तो हो गया यार काम। और आज का जो दौर चल रहा है वहां पे तो फिलॉसफी की और ज्यादा जरूरत है, सीधी सी बात है। ठीक है, जहां पे आज की डेट में जहां पे सोशल मीडिया रिवॉर्ड्स स्पीड, आउटरीच, सर्टेनिटी, वहीं आपको फिलॉसफी सिखाती है पेशेंस, नुआंसेस, यू शुड डाउट। सो फिलॉसफी डिमांड्स स्लो थिंकिंग। ये सब ट्रेंड, हेडलाइन, बचिए इनसे। ये कैसे बचोगे? फिलॉसफी से। ठीक है, क्योंकि हमें नॉलेज पे काम करना है। ठीक है, सोशल मीडिया का दौर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हार्ड क्वेश्चन पूछेगी फिलॉसफी, कंफ्यूज भी करेगी आपको। ऐसा नहीं है कि कंफ्यूज नहीं करेगी, आपके पुराने जो अजम्पशंस हैं उनको तोड़ेगी, आपको तकलीफ भी होगी, लेकिन आप रुकना नहीं, है ना, कंटिन्यू रखना, क्योंकि फिलॉसफी लास्ट में जो आपको ऑफर करेगी, यू विल लव इट व्हेन you will discuss these greatest mind of all time, चाहे वो एंशियंट फिलोसफी हो, चाहे वो मेडिवल हो, चाहे वो मॉडर्न हो, इन सब को जब हम पढ़ेंगे लास्ट में, तो आप यकीन मानिए कि आपकी लाइफ बदल जाएगी। दिस इज द रियलिटी। सो फिलोसफी इज नॉट ओनली अ सब्जेक्ट, इट इज अ वे ऑफ लाइफ। इट विल बी हैविंग एनरिचिंग aspect on your life, enriching effect on your life. Your way of thinking, your way of living, your way of assuming something will be changed altogether. So keep it up. Be with me with this particular series. ठीक है? This series will be having some additional aspect apart from UPSC syllabus coverage and all. We will try to explore all the ideas which is beyond the UPSC as well, so that we can make some change in the society. The society which is still admiring डोली चाय वाला instead of that professor, क्या नाम था उनका, HC वर्मा, आप अच्छे से जानते हैं। ठीक है, तो जब ये सोसाइटी में इस प्रकार की डिस्पैरिटी आ गई है, वहां पर फिलॉसफी बहुत जरूरी है, एंड दैट इज व्हाई सोक्रेटिस सेड एन अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। सो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स वी विल बी एग्जामिनिंग अवर लाइफ केयरफुली। Thank you so much. We will meet in the next lecture with the philosophy of Socrates. Study IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।